everyone, in this video we'll talk about promise.all function क्या होता है and how do we handle multiple promises at a one single time by using promise.all function. Okay, so very first thing is like कि so far we have covered कि promises क्या होते हैं, that it is a pure construct, it is a constructor function. Okay, and using this it helps us to handle the asynchronous operations. Okay, so other than that only, it also helps us to handle multiple promises together. So promise.all is a function, it's a static function, okay, which comes out of the promise constructor function only. Okay, so for example, this is our master promise constructor function. Okay, this constructor function is having another one, which is this promise.all. Okay, so you can basically access this promise.all through this constructor function only. Okay, this is our main constructor function using which we created this new promise, right? जो हमको ये two parameters return करता था, resolve and reject. So it is the same promise constructor function only. उसी सेम को हम यूज़ करके promise.all function भी यूज़ करते हैं. Okay, now few things about this promise.all is that कि promise.all जो होता है, it is basically a function जो कि एक array के अंदर multiple promises को accept कर सकता है. Okay, so you can say that it accepts multiple promises in an array as a list of array or as a list of array. Okay, so like for example we can say कि like ये हमारे पास में एक array है. Okay, so we'll say कि promise.1 promise1, ये इसके पास first promise है inside this, then it has this promise2 and then it has this promise3. Okay, so this is how the promise.all function works कि वो क्या होगा, हमेशा एक array accept करेगा जिसके अंदर multiple promises can be present. Okay, now what happens is that कि promise.all, अब इस चीज़ का result किस तरह से generate होगा, because we all know कि that promise is something जो कि asynchronous operation होता है, right? We don't know कि उसका result एक success scenario होगा या फिर वो reject हो जाएगा या कैसे हो जाएगा, right? So जब भी आप एक का एक array होता है, so like if we consider that okay fine, that all each and every single promise is going to get accepted. Okay, so that everything is visible, right? So if we consider that each and every single, let's keep this here. Okay, and let's reduce this size, and let's say that each and every single promise is getting resolved. Okay, that promise1 is success. Okay, then promise 2 is also success. Okay, and promise 3 is also success. तो अगर सारी की सारी promises आपका success return कर रही है, उस केस के अंदर ही promise.all आपका success return करेगा. Okay, if all the promises are returning success, in that case only promise.all returns success. promise.all आपका success return करेगा. Okay, अगर आपका एक भी प्रॉमिस फेल होता है, सो लाइक इवन इफ वन सिंगल प्रॉमिस इज गेटिंग फेल्ड, लाइक अगर हम कहते हैं दैट इवन लाइक अगर मेरा एक promise2 भी अगर फेल होता है, दिस गेट्स रिजेक्टेड. ओके, लेट्स से फेल्ड ओनली. ठीक है, अगर ये रिजेक्ट होता है, सो इस सिनेरियो के अंदर आई वुड से दैट जो मेरा promise.all होगा वो मेरे को promise.all होगा वो मेरे को रिजेक्ट वाला ही देगा. सो इट इन दिस केस वो जो आपका रिस्पॉन्स जो जनरेट होगा promise.all फंक्शन का, वो आपका रिजेक्टेड वाला सिनेरियो होगा. ओके, सो एज वी नो कि जब भी अगर आपका प्रॉमिस रिजॉल्व होता है तो जो भी आप आउटपुट रिजॉल्व फंक्शन के अंदर पास करते हो वही आपके देन ब्लॉक के अंदर आता है, राइट? अगर आपने कोई रिजेक्ट हो गई है कोई प्रॉमिस आपकी, वो आपकी डॉट कैच ब्लॉक के अंदर जाएगी. ओके, सो अगर सारी की सारी प्रॉमिसेस आपकी रिजॉल्व हो रही है तो वो promise.all के अंदर देन ब्लॉक के अंदर जाएगी, अदरवाइज वो डॉट कैच ब्लॉक के अंदर जाएगी. सो वन पॉजिटिव पॉइंट अबाउट promise.all इज़ दैट कि आपकी हर एक प्रोमिस को लाइक इट कंबाइंस टुगेदर, और जो रिजल्ट होता है आपका वो भी एक एरे फॉर्म के अंदर ही प्रोवाइड कर देता है.
ओके। बट अगर एक भी प्रॉमिस रिजेक्ट होती है देन इट डज़ नॉट मैटर कि उसने फर्स्ट प्रॉमिस सक्सेस हुई थी या थर्ड प्रॉमिस सक्सेस हुई थी। जैसे ही लाइक इफ़ इट हैज़ वो फर्स्ट प्रॉमिस को चेक करता है, अगर सेकंड रिजेक्ट हो गई है तो वो थर्ड वाली प्रॉमिस को चेक भी नहीं करेगा, वहीं से वो डॉट कैच ब्लॉक में चला जाएगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ की प्रॉमिस डॉट ऑल, व्हाट एग्जैक्टली इज़ प्रॉमिस डॉट ऑल, और हम लोग कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, मल्टीपल प्लेसेस पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर भी आपको मल्टीपल नेटवर्क कॉल्स करनी हो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट, कि आप इसको इम्प्लीमेंट किस तरह से कर सकते हो, हम लोग किस तरह से मल्टीपल प्रोमिसेस पास कर सकते हैं। ओके, सो आई क्रिएट अ न्यू फाइल, लेट्स से आई क्रिएट promise all डॉट JS। ओके, मैं इसके अंदर 3 प्रोमिसेस क्रिएट करती हूँ। आई क्रिएट इन द एग्जैक्ट सेम वे जैसे हम लोगों ने इन लास्ट वीडियो वी क्रिएटेड। सो आई से promise 1 न्यू promise। ओके, सो हम लोग ये प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज़ करते हैं। जब भी आप प्रॉमिस कोई भी क्रिएट करोगे विल ऑलवेज यूज़ दिस प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ठीक है, दिस फंक्शन बेसिकली गिव्स यू दीज 2 पैरामीटर्स, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। इसके बाद में हम इनसाइड हमारा जो भी फंक्शन होगा वो लिखते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हमने एक वेरिएबल कंसिडर किया, लेट्स से कि इट इज़ ट्रू। ओके, लेट्स राइट डाउन द हैप्पी सिनेरियो फर्स्ट। ओके, लेट्स से इट इज़ ट्रू। अब हम लोग लिखेंगे हमारा फाइनली प्रॉमिस दैट इफ सक्सेस, विच मीन्स अगर सक्सेस वेरिएबल ट्रू है तो लेट्स से कि दैट प्रॉमिस नंबर 1 इज रिजॉल्व्ड, प्रॉमिस 1 इज रिजॉल्व्ड। ओके, एल्स ऐसा नहीं होता है देन वी आर गोइंग टू रिजेक्ट द प्रॉमिस एंड देन वी विल से दैट प्रॉमिस 1 is rejected। ओके, लाइक दिस एवरीथिंग इज क्लियर सो फार कि हम लोगों ने एक वेरिएबल कंसिडर कर लिया है और फिर हम उसको रिजॉल्व कर रहे हैं और उसी को ही फिर हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं अगर वो वेरिएबल ट्रू होता है या फॉल्स होता है उसके बेसिस पर। ओके, इन द सेम वे हम लोग 2 मोर प्रोमिस क्रिएट कर लेते हैं फॉर द एग्जाम्पल परस्पेक्टिव। सो दिस इज प्रॉमिस 2 एंड दिस इज प्रॉमिस 3। इस केस के अंदर भी हम लोग सक्सेस रखते हैं एंड देन लेट्स से दिस इज प्रॉमिस 2 इज रिजेक्टेड एंड देन फाइनली प्रॉमिस 3 एंड देन प्रॉमिस 3 इज रिजेक्टेड। ओके, सबका सेम कोड है, वी डोंट केयर कि मतलब कोड के अंदर क्या है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रॉमिस डॉट ऑल किस तरह से वर्क करता है, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, अब लोग आफ्टर दिस वी विल राइट डाउन, वी विल यूज दिस प्रॉमिस डॉट ऑल फंक्शन। जैसे आप प्रॉमिस डॉट करोगे यू विल सी ऑल द फंक्शंस दैट इट कंटेन्स। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल आपका ऑल आ गया है। ओके, सो टेक्स दिस राउंड ब्रैकेट एंड देन फिर उसके बाद में एक एरे एक्सेप्ट करता है इनसाइड विच यू कैन पास एज मेनी प्रोमिसेस यू वांट टू पास। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं प्रॉमिस 1 पास करती हूँ, प्रॉमिस 2 पास करती हूँ एंड देन प्रॉमिस 3 पास करती हूँ। ओके, वी हैव पास्ड ऑल दीज 3 promises. आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू राइट डाउन द डॉट देन ब्लॉक। ओके, so instead of writing over here, now consider promise dot all as like any other promise. Okay, like how you will deal with any other normal promise, consider it exactly like that. Okay, कि आप इसका dot then block लिखोगे, you will be writing its dot catch block and dot finally block exactly like this. Okay, so this time you will have response and then over here you will log the response. Okay, so let's say that we write down something also over here so that we know, okay fine, this is the promise response. Okay, so promise success response, let's say it is promise success response. In the same way we are going to write down the dot catch block also. Okay, but in dot catch block हम लोग res की जगह error consider करते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग की कोड की रीडेबिलिटी गेट्स इंक्रीज्ड. ओके, नाउ अगेन आई विल डू console.log and then I will say okay fine, promise fail error, I will say fail error and then we'll just print err. Okay, like this. Now if we want we can write down the dot finally block also, if we want we can avoid it also. Okay, so I'll just simply say that it is completed, something like this. Okay, so I will say promise dot all and then I will say log promise dot all is completed. Okay,
So it is always better कि आप whenever you are writing any code or anything, you're always following the proper structure and you are maintaining the entire code readability and you are creating a proper code flow. Okay, because it is very very important कि जब भी आप like you are giving any live coding round. Okay, so it is important कि आप एक code लिख रहे हो which is like प्रोडक्शन लेवल पे इट इज़ अ गुड रिटर्न कोड. इट्स नॉट लाइक कि अगर आप इंटरव्यू में लिख रहे हो तो आपको ऐसे ही लिखना है इन जस्ट लाइक इन अ कैजुअल वे. डू नॉट डू लाइक दिस. Always write with proper, even if you're writing any console statements also, which is a very basic console statement, so do not write xyz. Okay, say what exactly you want to print over there or what is the intent behind it. Okay, so let's run this code now. Let's clear it and then I will say node promise all dot js. Okay, if I will run it, since all my promises are resolved right now, तो मेरे पास में the response should also be resolved. Okay, I will say enter and then promise success response 1 is resolved, 2 is resolved, 3 is resolved and promise dot all is completed. तो हमारा finally block भी print हो गया है. If you will notice हमारा जो response आया है वो it has come like an array right now. ठीक है, वो एक array की तरह जनरेट हुआ है. अगर मेरा एक भी प्रॉमिस यहाँ पे रिजेक्ट होता है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं प्रॉमिस 2 को यहाँ पे फॉल्स कर देती हूँ. ठीक है, सो नाउ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वेरी ऑफ्टन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स इन द इंटरव्यू कि अगर प्रॉमिस डॉट ऑल के अंदर इवन इफ एनी वन प्रॉमिस गेट्स रिजेक्टेड तो आउटपुट क्या होगा. ओके, तो आउटपुट वो होगा जिस प्रॉमिस का रिजेक्ट हुआ है उसके रिजेक्ट ब्लॉक के अंदर क्या लिखा हुआ है वाइल द टाइम ऑफ रिजेक्ट इट गेटिंग रिजेक्टेड, उसमें क्या पास किया हुआ है वही आपका आउटपुट होता है. ठीक है, ऐसा ही होता है कि लाइक इवन इफ प्रॉमिस 1 हैज़ गॉट रिजॉल्व तो उसका रिस्पॉन्स आएगा, सक्सेस रिस्पॉन्स आएगा. नो, इफ इट इज़ फेल्ड देन एंटायर एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन एंड एंटायर एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड हैज़ बीन फेल्ड. ओके, इट्स नॉट लाइक कि प्रॉमिस 1 तो पास हुआ है तो उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए. नो नो, प्रॉमिस डॉट ऑल इज़ लाइक कि कलेक्टिव रिस्पॉन्स. ओके, लेट्स ट्राई दिस वन. इसको रन करते हैं. यू विल सी दैट प्रॉमिस फेल एरर. यहाँ पर हमने जो ये स्टेटमेंट लिखा है कैच ब्लॉक के अंदर हैंडल करने के लिए ये आ रहा है एंड देन यू विल सी द एरर विच इज़ प्रॉमिस 2 इज रिजेक्टेड एंड देन फाइनली योर फाइनली ब्लॉक. Okay, so I hope this is clear. So this is complete thing and complete implementation and explanation of promise.all, and thank you so much for watching.